આજે સમગ્ર વિશ્વભરના મુસ્લિમ બિરાદરો શબે બારાત રાતની ઉજવણી કરી. પાપના ત્યાગની સાથે ભાગ્યમાં પરિવર્તનની રાત એટલે શબે બારાતની રાત. મુસ્લિમ બિરાદરોએ ગુરુવારના રોજ શબે બારાતની રાતની આસ્થા અને શ્રદ્ધાભેર ઉજવણી કરી હતી. કબ્રસ્તાનમાં જઈને મરહુમના હકમાં દુઆઓ કરી અને તમામ મસ્જિદમાં આખી રાત ઇબાદતો કરી હતી. શબે બારાતની તારીખ 13/2 ને ગુરુવારના રોજ ઇસ્લામી કેલેન્ડર મુજબ આ તહેવાર શાબાન મહિનાની 14મો ચાંદ, ઇસ્લામી કેલેન્ડરનો 8મો મહિનો સૂર્યાત મગરીબ પછી ઉજવવામાં આવે છે. મુસ્લિમ બિરાદરોની શાબાન માસની 15મી રાતને શબે બારાતની રાત કહેવામાં આવે છે. આ રાતને ભારત દેશ સહિત વિશ્વભરના મુસ્લિમ બિરાદરો મનાવે છે. તારીખ 13 ને ગુરુવારે ભાવનગર શહેર સહિત તમામ તાલુકા મથકો ઘોઘા, તળાજા, પાલીતાણા, મહુવા, ગારિયાધાર, ઉમરાળા, વલભીપુર, સિહોર તમામ તાલુકા મથકમાં આવેલ કબ્રસ્તાનમાં મુસ્લિમ બિરાદરો સાંજે મગરીબની નમાજ બાદ તમામ કબ્રસ્તાનમાં જઈ મરહુમની કબર ઉપર ફૂલ ચડાવી ફાતિહા પડી મરહુમના હકમાં મગફિરતની બક્ષિસની દુઆઓ કરી હતી. તેમજ શહેર જિલ્લાના તમામ મસ્જિદોમાં મગરીબની નમાજ બાદ શબે બારાતની ખાસ 6 રકાત નિફલ નમાજ અદા કરવામાં આવી હતી. તેમજ આખી રાત વહેલી સવાર સુધી તમામ મુસ્લિમ બિરાદરો જુદી જુદી મસ્જિદોમાં તેમજ પોતાના ઘરમાં ફરજ તથા નિફલ નમાજો પડી હતી. કુરાન શરીફની તિલાવત કરી હતી, જિક્ર શરીફ કર્યો હતો, બીમારોને જોવા જવા, જરૂરિયાતમંદ લોકોને આર્થિક મદદ કરવી, યતીમ મિસ્કીન બેવાઓને મદદ કરવી, આ તમામ નેક કામો તથા પોતાના ગુનાહોની માફી માંગી ખાસ દુઆઓ કરી હતી. આ રાતનું ઘણું જ મહત્વ છે. ઘણા મુસ્લિમ બિરાદરો શાબાન માસના ખાસ નિફલ રોજા પણ રાખે છે અને નિફલ નમાજો પણ અદા કરે છે. શબે બારાત એટલે શાબાન મહિનાની 15મી રાત. શબે બારાતને આઝાદી અને મુક્તિની રાત પણ કહેવામાં આવે છે. આ રાતમાં ગુનાહોની માફી થાય છે. બરાત થવું એટલે મુક્તિ થવી. આ રાતમાં દરેક હિકમત વાળું કામ વહેંચી દેવામાં આવે છે. સંધિ જાગૃતિ ન્યૂઝ તંત્રી જાહિદ મદ્રા સાથે રિપોર્ટ ઇરફાન સોલંકી, ભાવનગર. ભાવનગર કસ્બા અંજુમન ઇસ્લામ દ્વારા સંચાલિત ઘોઘા સર્કલમાં આવેલું ઘનસારા કબ્રસ્તાન તરીકે ઓળખાતું કબ્રસ્તાન તેમજ કુંભારવાડામાં નદી કબ્રસ્તાન તરીકે ઓળખાતું કબ્રસ્તાન આજે શબે બરાતના દિવસે જે મૈયત થઈ ગયું હોય, જે મૃત્યુ થઈ ગયા હોય એમનું આજે ઈદ કહેવાય છે. એની માટે થઈને લોકો કબ્રસ્તાને આવતા હોય છે મુસ્લિમ સમાજના. એની માટે ભાવનગર કસ્બા અંજુમન ઇસ્લામ તેમજ કબ્રસ્તાન કમિટી તેમજ ખિદમત કમિટીના લોકોએ છેલ્લા 1 મહિનાથી કબ્રસ્તાનની અંદર સફાઈની ઝુંબેશ, કબરોની ઉપર કલર, ચૂનો તેમજ ઝાડવાની અંદર પણ કલર ને ગેરું લગાડવાનું કામ, તેમજ તે ગાર્ડનની અંદર બગીચા ટાઈપનું જે કાંઈ મહેંદી છે એમનું કતરીનું કામ છેલ્લા 1 મહિનાથી કાર્યરત કરી રહ્યા છે. અને આજે ભાવનગરની વધારેમાં વધારે પબ્લિક કબ્રસ્તાનની અંદર આવે અને એને તમામ સગવડતા પૂરી પાડવાનું કાર્ય કબ્રસ્તાન કમિટીના તમામ મેમ્બરોએ કરેલ છે. बाबू, आज जो शबे बारात है मुस्लिम समाज की, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले शहर भावनगर की कदीमी और शाही मस्जिद जामे मस्जिद का एक अदना सा खादिम खतीब व इमाम सैयद वसीम अहमद अशरफ़ी और हमारी यहाँ की पूरी टीम तमाम आलम इस्लाम को और बिलखुसूस शहर भावनगर के तमाम मुसलमानों को आने वाली मुबारक रात शब बारात की मुबारकबादी पेश करते हैं। आपने ये पूछा कि इस रात की अहमियत क्या है, फजीलत क्या है, तो उसके हवाले से चंद बातें मैं कुरान और हदीस की रोशनी में आपके मीडियम के माध्यम से पेश करना चाहता हूँ। देखें, ये वो मुबारक रात है कि सबसे पहले कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रात को लैलतुल मुबारका के याद फरमाया, यानी बरकत वाली रात। और साथ ही साथ आप ये देखें इस रात की बरकत कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ रातें अहले ईमान को बिलखुसूस हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ऐसी अता फरमाई है कि जिसमें अमल तो बहुत कम है लेकिन उसका अजर बहुत ज़्यादा है। यानी आप बहुत मुख्तसर इबादत करें लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन रातों के अंदर आपको कसीर सवाब अता फरमाता है। और उन अजीम रातों में से एक रात
शब बारात की रात है। इसी तरह रिवायतों के अंदर बाज रातों के हवाले से ये कहा गया कि कुछ रातें ऐसी हैं कि जिसमें अल्लाह के रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। उन रातों में से एक रात भी जो है शब बारात है। इसी तरह हमारे प्यारे आका प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस अजीम रात की खुसूसियत को, फजीलत को बयान फरमाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी जिब्राइल मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि ये शाबान की 15वीं रात है और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है चौथे आसमान पर अपनी शायान शान तजल्ली फरमाता है और तमाम मुसलमानों को बख्श देता है। और पूरी रात यानी गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तक मुसलमानों के लिए यह आम ऐलान किया जाता है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि हम उसे बख्श दे, है कोई रिस्क का तलबगार कि हम उसे रोजी अता करें, है कोई बीमार कि हम उसको शिफा अता करें, है कोई मुसीबतों से छुटकारा चाहने वाला कि हम उसकी मुसीबतें दूर करें। और ये मामला पूरी रात रहता है। तो अजीज़ान मोहतरम, कुरान और हदीस से हमने सुना कि अल्लाह उसके रसूल ने इस मुबारक रात के किस तरह फजीलत को और शान को बयान फरमाया है। लेकिन आपकी मीडियम के माध्यम से मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि जहाँ हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात की फजीलत को बयान फरमाया और इस रात की हवाले से बयान फरमाया कि इस रात में अल्लाह के बंदों पर रहमत आम होती है, लेकिन कुछ अफराद ऐसे भी हैं कि जिस पर इस रात को रहमत नहीं की जाती, यानी इस रात में वो अल्लाह की रहमत से महरूम होते हैं। तो वो बहुत से नाम जिक्र किए गए और बुरे अमाल करने वालों के नाम जिक्र किए गए हदीस पाक के अंदर, लेकिन चंद एक के मैं जिक्र करूं और हमारे समाज को और आपकी मीडिया से जो है मैं मैसेज देना चाहता हूं कि इस रात में जो है जो कसरत से शराब पीते हैं यानी नशा करते हैं, उन पर अल्लाह की रहमत नहीं बरसती, वो अल्लाह की रहमत से महरूम होते हैं। इसी तरह जिना करने वाले वो भी इस रात में अल्लाह की रहमत से महरूम होते हैं, उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। इसी तरह माँ बाप की नाफरमानी करने वाले वो भी जो है इस रात में जो है अल्लाह की रहमत से महरूम होते हैं, उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। रिश्ता तोड़ने वाले, बहुत से बुरे अमाल करने वालों का नाम उस हदीस पाक के अंदर मेंशन किया गया। लेकिन मैं आपको खुसूसी तौर पर, आज हमारा समाज कसरत के साथ नशे के अंदर मुब्तला है, हमारे जवान जिना के अंदर मुब्तला है, हमारी कौम के लोग कसरत के साथ जो हैं बेहयाई में मुब्तला है। तो समाज के तमाम मुसलमानों को, तमाम अहले ईमान को इस रात के आने से पहले ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप हो सके तो अपने आप को अच्छा मुसलमान बनाइए, शराब से तौबा कीजिए, जिना से तौबा कीजिए और अपने आप को एक सोसाइटी का अच्छा मुसलमान बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये रात हमें ये भी पैगाम देती है। और इस रात में मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ इबादत के अंदर जो है अपने जो है औकात को गुजारते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले इस रात का आगाज बाद नमाज मगरिब 6 नफल नमाजों से किया जाता है कि जो हमारे बुजुर्गान दीन के तरीके के मुताबिक अदा की जाती है। और उन नमाजों के बाद यासीन शरीफ की तिलावत होती है, दुआए निस्फ शाबान की तिलावत होती है। फिर उसके बाद जो है हमारी मस्जिदों के अंदर जो है रातों के अंदर इबादतों का, नफल नमाजों का, जिक्र व अस्कार का एहतमाम किया जाता है। तो मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि इस मुबारक रात को जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, फिर ये नसीब हो या नसीब ना हो ये कोई यकीनी नहीं, तो हमें चाहिए कि इस रात की बरकतों को हम हासिल करें और मस्जिदों में जाकर जो है इबादतों का एहतमाम करें। खुसूसी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर भावनगर की शाही और कदीमी मस्जिद जामे मस्जिद के अंदर भी कई सालों से जो है इस रात में इबादतों का, जिक्र व अस्कार का एहतमाम किया जाता है। इंशाअल्लाह मौला ताला आज रात भी जो है इबादतों का और जिक्र व अस्कार का एहतमाम है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक मुबारकबाद ये पेश करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़लिही ताला हमारी मेमन मोटी जमात जो जामे मस्जिद के संचालित हैं, उनकी जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 महीने या 2 महीने से मस्जिद का जो है रिनोवेशन का काम चल रहा है। और आप मीडिया के माध्यम से जो है आप दिखाइए कि किस तरह खूबसूरत तरीके से जामे मस्जिद का काम हुआ और किस तरीके से जो है यहाँ के खुद्दाम, यहाँ के काम करने वाली कमेटियां जो है मेहनत कर रही है। तो हम आपको दावत देंगे कि आप इस रात में जरूर तशरीफ लाइए और इबादतों का एहतमाम जामे मस्जिद में आकर करें। इंशाअल्लाह मौला ताला आज रात जो है बाद नमाज ईशा भी और बाद नमाज मगरिब भी जो है
इबादतों का एहतमाम होगा, जिक्र और अस्कार की महफिलें होगी, बयान की महफिलें होगी, तो आप जरूर शिरकत फरमाएं। और आखिर में यही मैं मैसेज देना चाहता हूं कि आप तमाम मुसलमान आज की रात, क्योंकि ये दुआओं की मकबूलियत की रात है, तो हमारे वतन अजीज हिंदुस्तान के लिए खुसूसी दुआ करे कि अल्लाह पाक हमारे इस वतन अजीज को और तरक्की अता करे, सलामती अता करे, और यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हमारे मुल्क अजीज को खूब कामयाबी और कामरानी अता करें। अमन और शांति का जो है, अमन और शांति के हवाले से आप दुआएं करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम मुसलमानों के दरमियान और तमाम भारतीयों के दरमियान अल्लाह पाक अमन कायम करें, एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत कायम करें। तो इंशाअल्लाह मौला ताला वतन अजीज के लिए आज हमने सबको मिलकर दुआ करनी है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को और तरक्की अता फरमाए और उरूज अता फरमाए। और आप दुआ करें कि आलम इस्लाम में जहां कहीं मुसलमान परेशान हाल हैं, तकलीफ ज़दा हैं, अल्लाह पाक उनकी तकलीफों को और परेशानियों को दूर फरमाए। सबसे आखिर में यही दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक इस रात के अंदर जो जो अहले ईमान इबादतें करें, जिक्र और अस्कार करें, जो जो इबादतें करें, अल्लाह पाक सबकी इबादतों को कबूल फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रात की बरकतें अल्लाह पाक सभी को नसीब फरमाए। और खास आखिर में यह भी पैगाम कि इस रात में तमाम मुसलमान कब्रिस्तान जाकर अपने रिश्तेदारों के लिए जो है दुआओं का एहतमाम करते हैं। तो आप पूछेंगे कि ये कहां से साबित है, तो याद रखें कि शब बारात में खुद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने हुजराए मुबारका से जो है जन्नतुल बकी शरीफ में तशरीफ ले गए, और अहले कुबूर के लिए, अहले बकी के लिए आपने मग़फ़िरत की दुआएं की, उनकी बारगाह में जो है उनकी रूह को इसाले सवाब किया। तो ये जो अमल है कि हम रातों के अंदर कब्रिस्तान में जाते हैं और इसाले सवाब करते हैं, अपने मरूमीन के लिए जो है दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, तो ये भी हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अमल से साबित है। तो हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत की अदायगी के लिए आज रात में अपने रिश्तेदारों के पास कब्रिस्तान में जरूर जाएं, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ भी जरूर करें, उनकी रूह को इसाले सवाब भी जरूर करें। और सबसे आखिर में ही पैगाम कि आज हम अपने मुआशरे में, समाज में देख रहे हैं कि भाई भाई से दुश्मनी किया हुआ है, रिश्तेदारों ने अपने एक दूसरे खानदानों से दुश्मनी की हुई है। तो ये रात जो हमें ये पैगाम देती है कि आज हम रात सिर्फ सोशल मीडिया पर जो है मैसेज डालकर ये कह देते कि भाई मुझे माफ कर दे, लेकिन हकीकत में ये माफी नहीं है। माफी है कि आप रूबरू उसके पास जाएं, मुसाफा करें, गले से मिलाएं उसको, और तमाम जिंदगी के अंदर जो एक दूसरे के हवाले से दिलों में किना है, कपट है और दुश्मनी पैदा हमने की है, हम उसको छोड़ें और एक अच्छा मुसलमान बने। और ये मैसेज दे इस रात के अंदर के अल्हम्दुलिल्लाह भी फजल ताला तमाम मुसलमान एक दूसरे के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत नहीं रखते हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत रखते हुए नजर आते हैं। तो अल्लाह पाक हम सभी को इस रात की बरकतें अता फरमाए, खूब इज्जतें अता फरमाए और हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। इसी के साथ मैं आपकी बात आपसे कहूंगा कि आप हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है हमारी इबादतों को कबूल करे और इस रात की बरकतें अता करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।